الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہوا، کرم ہوا، فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا کی مشغولی سے نکالا اور ایک اہم فریضہ مغرب کی نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور مزید کرم یہ ہوا تھوڑی دیر دین کی نسبت پر سر جوڑ کر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا یہ مفہوم ہے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دین کی خاطر غور و فکر کر لینا اپنے مقام پر رہ کر 60 سے 70 سال عبادت سے افضل ہے۔ صرف دین کے لیے غور و فکر کرنے پر یہ نیکیاں ملتی ہیں، 60 سے 70 سال عبادت سے افضل۔ آپ اندازہ لگاؤ میرے محترم بزرگوں دوستوں، جب دین کی غور و فکر کرنے پر 60 سے 70 سال عبادت کا اجر مل رہا ہے تو دین کی محنت کریں گے اللہ کیا دیں گے ہم کو اس کا؟ ہماری زبان پر وہ الفاظ نہیں ہیں۔ خود آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا جو تمام ملائکہ کے سردار ہیں کہ جبرائیل تم ہمیں یہ بتاؤ کہ دین کی محنت پر اللہ کیا دینے والے ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے نبی، اگر آپ ہم سے یہ پوچھ لیتے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کتنے درخت بنائے ہیں، ان درختوں پر کتنی شاخیں ہیں، ان شاخوں پہ کتنے پتے ہیں اور قیامت تک کے کتنے درخت ہوں گے اور کتنی شاخیں ہوں گی اور کتنے ان میں پتے ہوں گے، اگر آپ ہم سے یہ پوچھتے تو اللہ نے ہم کو وہ علم عطا کیا ہے کہ لمحے بھر میں ہم آپ کو بتلا دیتے۔ اگر آپ ہم سے یہ پوچھتے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنے قطرے پانی رکھا ہے اور قیامت تک کے پانی کتنا ہوگا، ہم اللہ تعالیٰ نے ہم کو وہ علم دیا ہے کہ ہم لمحے بھر میں آپ کو بتلا دیتے۔ لیکن اس دعوت اللہ کی محنت پر اللہ کیا دیں گے؟ اللہ نے فرمایا ہے اجر عظیم دیں گے، ہم اجر عظیم۔ اب اللہ کا اجر اور عظیم، اللہ کا اجر عظیم یہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ کتنا بڑھا کے دیں گے یہ اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ ہی جانتے ہیں۔ یہ ہے دین کی محنت پر۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، وہ دین جو ہم تک بڑی قربانیوں کے ساتھ ہم تک آیا ہے، یہ ایسا نہیں ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ دین مکہ اور مدینہ پہ مکمل ہوا۔ مکہ میں نازل ہونا شروع ہوا اور مدینہ میں بھی نازل ہوا اور مکہ میں ہی جبل رحمت کے پاس عرفات کے میدان پر دین مکمل ہو گیا، دین مکمل ہوا۔ پھر پوری دنیا کے اندر دین پہنچا کیسے پہنچا، یہ سوچنے کی بات ہے، یہ فکر کی بات ہے۔ اس لیے ایسا نہیں ہے، ایسا نہ سمجھے ہم کہ مکہ مدینے کے اندر جوڑ سے تیز آندھی چلی ہوگی جس کی بنیاد پر پوری دنیا کے اندر دین پہنچ گیا، نہیں، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی جماعت کا جسم کا ایک ایک خون کا قطرہ لگا تب یہ دین ہم تک پہنچا، تب ہم تک پہنچا، ایسے نہیں پہنچا۔ تمام کی تمام صحابہ کی قربانیوں کو دیکھیں، ہم اٹھا کر سیرت کی کتابوں کو پڑھیں تو پتہ چلے گا اس دین کے خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کتنی بڑی قربانی، کتنی قربانی۔
खुद आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हमारी जिंदगी में 3 मौके ऐसे गुजरे हैं अबू हुरैरा, वो मौका अगर हमको याद आता है हमारी आंख से आंसू आज भी जारी होते हैं। 3 मौके ऐसे गुजरे। सबसे पहला मौका वो था कि अबू तालिब का, हमारे चचा का इंतकाल, उनकी कमी का एहसास हमको उस दिन हुआ जब मक्का के मुशरिकीन ने हमारे गर्दन पर रस्सी का फंदा डालकर मक्के की गलियों में हमको खींचा। जब तक मेरा चाचा अबू तालिब जिंदा था किसी की हिम्मत नहीं थी, कोई टेढ़ी निगाह से भी हमको देख लेता, किसी की मजाल नहीं थी। ये पहला मौका था, अबू तालिब का इंतकाल। ये अबू तालिब कौन है? ये हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद जाफर इब्ने अबी तालिब रदी अल्लाह तआला अन्हु, उनके बेटे, इनकी कुर्बानियां लगी। खुद जाफर इब्ने अबी तालिब रदी अल्लाह तआला अन्हु गज़वा मोता के मौके पर, ये क्या है, ये नौजवान 33 साल का नौजवान, 33 साल का नौजवान, जवान बीवी को छोड़कर गए हैं, जवान बीवी को। और गज़वा मोता इसलिए कहा गया है कि गज़वा मोता में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं थे, और गज़वा उसी को कहा जाता है जिसमें खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हों। लेकिन गज़वा मोता के मंजर को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अल्लाह ने आंखों के सामने ऐसे खोल दिया था जैसे मैं आपके सामने बैठा या मेरे सामने आप बैठे। आप उस गज़वे का मंजर अपनी आंख से देख रहे हैं। जाफर इब्ने अबी तालिब रदी अल्लाह तआला अन्हु जब शहीद हुए, जो 3 मासूम बच्चे अब्दुल्ला और मोहम्मद, ये 3 उनके बेटों के नाम हैं। जाफर इब्ने अबी तालिब रदी अल्लाह तआला अन्हु जब शहीद हुए तो आप अपनी मस्जिद नबवी से उठे और जाफर इब्ने अबी तालिब के घर पहुंचे। देखा अब्दुल्ला और मोहम्मद, ये तीनों भाई घर के दरवाजे पर खेल रहे हैं और उनकी वालिदा रोटी पका रही। आपने अब्दुल्ला को गोद पर उठाकर उसके माथे पर बोसा दिया, और को उठाकर उसके माथे पर बोसा दिया और सर पर हाथ फेर कर फरमाया, आज मेरे ये भतीजे यतीम हो गए। उनकी वालिदा ने ये बात रोटी पकाते हुए सुना और वहीं पे दस्त खाकर गिरी और बेहोश हो गए। ये मासूम बच्चों का बचपना लगा, जवानों की जवानी लगी। ये दिन हम तक ऐसे आया है, ये दिन हम तक ऐसे आया है। ऐसा नहीं है कि हमें तो दीन कोई विरासत में मिल गया, नहीं मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हमारे सामने ये दुनिया का मंजर है कि हमने दीन की मेहनत छोड़ी तो दीन हमारी जिंदगियों से गैर महसूस तरीके से निकल गया और हमें एहसास भी नहीं। आप सोचो तो सही, खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो चाचा मेरा जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया, ऐ नबी जी, ये आपका भी शेर है और मेरा भी शेर, अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला सैयदो सुहदा, शहीदों के सरदार, ये बदर के मैदान, उहद के मैदान पर ये शहीद हुए, उहद के मैदान पर शहीद हुए। आप फरमाते हैं हमजा मेरा वो चाचा है कि जिसने कलमा पढ़ने से पहले मेरे ऊपर कोई मुसीबत आती ढाल की तरह खड़े होते, ढाल की तरह। लेकिन वहशी ने मेरे चाचा को शहीद किया। अबू हुरैरा, जब मैं अपने चाचा के जनाजे को देखता हूँ और उनके जिस्म को देखता हूँ, जिनके कान को काट दिया गया, जिनकी नाक को काटा गया, जिनका कलेजा चीरकर, सीना चीरकर कलेजा निकाला गया, जब मुझे मेरे चाचा की याद आती है मेरी आंख से आंसू बहने लगते, मेरे आंख से आंसू जारी हो जाते हैं। और तीसरा मकाम फरमाया अबू हुरैरा, वो मौका है जो मैं तैफ के मौके पर गया था, ताइफ के मौके पर, कि लोगों ने मुझको 3 मील तक चला कर पत्थरों से मारा, पत्थरों से।
मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, सहाबा की कुर्बानियां, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियां बताना बड़ा आसान है, सुन लेना बड़ा आसान है। ज़ैद इब्न हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो 12 साल की उम्र में आप फरमाते हैं तैब के मामले में तैब के हालात ऐसे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून मुबारक नालैन मुबारक से चिपक गया था, मेरे हाथों से नहीं निकलता था, मैंने दोनों हाथ से आपके नालैन मुबारक पकड़कर दांत से खींचकर तब आपके नालैन मुबारक में निकाल पाया, तब मैं निकाल पाया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, सहाबा की एक सहाबा की कुर्बानी, कितने अनगिनत सहाबा की कुर्बानी, अनगिनत सहाबा। मर्द तो मर्द रहे मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, मस्तूरात भी पीछे नहीं है, मस्तूरात भी पीछे नहीं। हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, 48 साल की उम्र है, 48 साल की उम्र। बदर के मैदान पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खेमा जहां पर लगा है, आप खेमे की पहरेदारी कर रही हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार पलटकर उम्मे अम्मारा को देखते हैं। उम्मे अम्मारा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये गुमान करते हैं कि मैं औरत जात हूँ, मैं आपकी पहरेदारी कर रही हूँ, आपको इसका खदशा है कि मुशरिकीन कहीं आप पर हमला न करें। ये मस्तूरात है, ये औरत है 48 साल की बूढ़ी, 3 मुशरिकों को कत्ल किया, 3 मुशरिकों को, और 12 से ज्यादा जख्म अपने जिस्म पर खाए हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करते हुए। आज मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, वो दिन सिसक रहा है, वो दिन मिट रहा है, जिसका हमें कोई मलाल, कोई गम नहीं, कोई गम नहीं। कभी हमने सोचा है, कभी हमने समझा इस बात को, कभी बेदीनी को देखकर हमारी आंखों पर भी आंसू आए? नहीं मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ना हमारा जान लगा, ना हमारा वक्त लगा, ना हमारा माल लगा। अब इसे मिटता है तो मिट जाए, मेरा क्या, मेरा क्या? आप सोचो तो सही, आप तसव्वुर करो, मैदान महशर जब लगा होगा, अव्वलीन से आखिरीन सब जमा, सब जमा, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अजमाइन की जमात के बच्चे, जवान, बूढ़े, औरतें सब जमा होंगे। अल्लाह ताला अगर यूं फरमा दे, ऐ मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, जिस दीन के खातिर तुमने अपने जिस्म की बोटियां नुचवाई और ये दीन तुमने लोगों तक पहुंचाया, इन 1400 साल के बाद वाले मुसलमानों से पूछो, इन्होंने दीन के खातिर क्या किया? क्या जवाब बनेगा? अब सोचे तो सही। इस सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अजमाइन की ये बड़ी कुर्बानियां हैं। माज इब्न अफरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मुअव्विज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, 11 साल 13 साल के बच्चे हैं जिन्होंने अबू जहल का कत्ल किया, अबू जहल का कत्ल। खुद बसीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक 11-12 साल का मासूम बच्चा, वो अपनी जिंदगी के गुजरे हुए दिन बताता है कि हमने दीन के खातिर क्या क्या नहीं किया। बसीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, शुरू जमाने में हमारे वाले साहब ईमान में दाखिल हो गए, हमारी वालदा भी ईमान में दाखिल हो गई, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने ईमान को अभी छुपा कर रखो, अपने ईमान को अभी जाहिर न करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्का से मदीना पहुंच गए और हमारे वालिदैन मक्का में ही रह गए, हमारे वालिदैन मक्का में ही ठहरे। हमारे वालिदैन का ईमान का लाना मुशरिकीन पर खुल गया, मुशरिकीन पर जाहिर हो गया। मुशरिकीन हमारे वालिद को जहां पकड़ते, हमारे वालिद की वहां पिटाई करते, वहां पिटाई करते। हमारे वालिदैन ने छुप छुपाकर हमको लेकर हिजरत की और हम भी किसी तरह से जान बचाकर मदीने पाक पहुंच गए। हमारे वालिद साहब को असहाबे सुफ़ा के चबूतरे पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिठाया, हमारी वालदा को अंसार के किसी एक घराने में से एक घर के अंदर ठहराया।
ہم چھوٹے سے بچے تھے، جب ہمیں اپنی امی کی یاد آتی ہم کبھی اپنی امی کے پاس چلے جاتے، جب ہمیں اپنے والد صاحب کی یاد آتی ہم اپنے ابو کے پاس آ جاتے۔ تھوڑے دن گزرے تھے، ہماری والدہ کا انتقال ہو گیا، ہماری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اب ہمارا حال یہ تھا کہ جب ہم کو اپنی والدہ کی یاد آتی ہمارے والد صاحب اپنے سینے سے لگا کر ہماری پیٹھ کو تھپ تھپاتے اور ہمیں لوریاں سناتے، ہم روتے روتے سو جاتے۔ تھوڑے دنوں کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے کی تشکیل کی، ہمارے والد صاحب نے بھی نام پیش کیا، ہمارے والد صاحب نے بھی اپنا نام پیش کر دیا۔ نام لکھانے کے بعد اصحاب صفہ میں جب آئے ہم کو اپنی گود پر بٹھا کر کہنے لگے، بیٹا بصیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے میدان پر جا رہے ہیں، لوگوں نے نام لکھایا ہے، بصیر ہم نے بھی نام لکھا دیا۔ بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابا جان، امی تو ہم کو چھوڑ کر چلی گئی، آپ بھی اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ یہ چھوٹا سا بچہ ہے۔ ان کے والد صاحب نے کہا، بیٹا بصیر، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تلوار کے سائے پر رہیں اور میں تجھے سینے سے لگائے لوریاں سناتا رہوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، ہمیں تو جانا پڑے گا۔ لشکر کی تیاری ہوئی، لشکر کی تیاری شروع ہو اور لشکر روانہ ہوا۔ بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے 2-3 بچے تھے، ہم لشکر کے پیچھے اتنی دور تک گئے جب تک ہماری نگاہوں سے لشکر اوجھا نہیں، ہم چلتے رہے اور رو کے واپس آ گئے۔ اصحاب صفہ کے چبوترے پر ہم روتے رہتے، لوگ ہم کو تھپ تھپاتے، ہم سو جاتے، پھر ہم جاگتے، پھر ہمیں اپنے والد والدہ کی یاد آتی۔ ایک دن کچھ دنوں گزرنے کے بعد میں یہ خبر آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر فتح کے ساتھ واپس آ رہا ہے، فتح کے ساتھ۔ ہم نے اپنے دوستوں سے کہا، چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کا استقبال ہم مدینے کے باہر کریں گے۔ ہم مدینے کے باہر آئے، پہاڑیوں کے اوپر چڑھ گئے، لرزتی نگاہوں سے دور تک جہاں تک ہماری نگاہ جاتی ہم وہاں تک لشکر کو دیکھتے۔ پھر ہماری نظروں نے دیکھا ایک غبار سا اٹھا، دھول سی اڑ رہی تھی، جب وہ دھول چھٹی اور لشکر قریب آیا تب ہمیں لگا لشکر آ رہا ہے، ہم پہاڑیوں سے نیچے اتر گئے اور ہم قطار بنا کر کھڑے ہو گئے۔ ہمارے ساتھ جتنے بچے تھے وہ بچے بھی کھڑے ہو گئے۔ اب لشکر گزر رہا ہے، جس کا بچہ جس کے سامنے آتا ہے وہ اپنے بچے کو اٹھا کر اپنی سواری پر بٹھاتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ دیکھتے دیکھتے ہمارے ساتھ کے سارے کے بچے اپنے والد صاحب کے ساتھ نکل گئے اور ہم تنہا اکیلے رہ گئے اور لشکر گزر رہا ہے۔ سب سے لاسٹ میں دیکھا، سب سے آخری میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آئی۔ میں سواری کے سامنے کھڑا ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے نیچے اترے اور آپ نے جب بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ یہ معصوم بچہ ہے، اس کو میں کیا جواب دوں، کیا کہوں میں اس کو؟ بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک پکڑ کے ہلایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے کے تمام بچوں کے ابو آ گئے، ہمارے بچوں کا ابو کا پتہ نہیں چلتا، ہمارے ابو کا کیا ہوا؟ آپ فرماتے ہیں، بصیر کی بات سن کر میری آنکھ سے آنسو بہنے لگے، میں اس معصوم بچے کو کیا بتاؤں کہ اس کا باپ شہید ہو گئے۔ میں نے بصیر کی طرف سے اپنے چہرے کو داہنی طرف گھمایا، بصیر میری داہنی طرف آ گیا اور مجھ سے کہنے لگا، یا رسول اللہ، آپ میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ آپ بتائیں میرے والد کا کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے بائیں طرف چہرہ کیا، بصیر میری بائیں طرف آ گیا اور میرے سے پوچھنے لگا،
या रसूल अल्लाह, आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? आप बताएं मेरे वालिद का क्या हुआ? मैंने उसको गोद पर उठाया और अपनी उंगली से बशीर के आंसू पोंछे और मैंने कहा, बशीर, क्या तू इस बात पर राजी नहीं कि ऐसा तेरी माँ बन जावे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरा बाप बन जावे? तू इस पर राजी नहीं? मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, जवानों की जवानी लगी, बूढ़ों का बुढ़ापा लगा, बच्चों का बचपना लगा, तब ये दीन हम तक आया है, जिस दीन को हम अपनी बॉडी पर, अपने जिस्म पर अपनाने को तैयार नहीं है तैयार। आप सोचो तो सही, सहाबा इकराम में जवान भी थे, बूढ़े भी थे, मासूम भी थे, सब थे मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, सबकी कुर्बानियां लगी, तब ये दीन हम तक पहुंचा, तब ये दीन हम तक पहुंचा। इस उम्मत का कोई नाबीना खुदा की कसम अल्लाह के सामने उज्र पेश करे, इस उम्मत का कोई अपाहिज अल्लाह के सामने उज्र पेश करे, खुदा की कसम किसी का कोई उज्र कबूल नहीं किया जाए। अगर कोई नाबीना अल्लाह के सामने उज्र पेश करे, हे अल्लाह, मैं अंधा था, तेरे दीन की मेहनत करता, मुझे आपने आंख नहीं दी, मैं कैसे तेरे दीन की मेहनत करता? अल्लाह ताला फरमाएंगे, अब्दुल्लाह इब्न मख्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पेश करो इसके सामने और इससे पूछो, ये भी नाबीना था, इसके जिस्म के टुकड़े क्यों किए गए? क्यों किए गए इसके टुकड़े? इस उम्मत का अपाहिज अगर अल्लाह के सामने उज्र पेश करेगा, अल्लाह तबारक व तआला अम्र बिन जमुह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पेश करेंगे, ये भी तो विकलांग था, इससे पूछ इसके जिस्म की बोटियां क्यों की गई? क्या जवाब देंगे मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों? हमारे पास टाइम नहीं था, हम कारोबारी आदमी थे, हम ताजिर थे, हम क्या बोलेंगे? इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, जो जिंदगी गुजर गई उस पर इस्तगफार हो। अल्लाह, जिंदगी तो आपने दी थी, आप ही का खाया, आप ही का पिया, आप ही की जमीन पर चले और आप ही की नाफरमानी पर लगा दी, आप ही की नाफरमानी पर। इसलिए आज भी हम पक्की सच्ची तौबा करें कि अल्लाह, हमसे बड़ा कसूर हो गया, बड़ा कसूर। हमने सीरत की किताबों का मुताला नहीं किया, हमने किताब को नहीं पढ़ा, हमने तेरे कलाम पाक की तिलावत तो करी, उसको समझने की कोशिश नहीं करी। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। तुम बेहतरीन उम्मत किस लिए हो? वो सड़ी हुई दुनिया जिसको अल्लाह ताला ने जिस तारीख से बनाया है, एक मर्तबा रहमत की निगाह से नहीं देखा। खुदा का मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये दुनिया मुर्दार है, मुर्दार। इसके आगे के अल्फाज मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मुझ में ताकत नहीं है कि मैं बोल सकूं, मुझ में ताकत नहीं है। इसलिए तौबा करें कि अल्लाह, जो कुछ भी हो गया, जो जिंदगी गुजर गई, हम पक्की सच्ची तौबा करते हैं। हम आज के बाद तेरे दीन की मेहनत को अपनी जिंदगी का मकसद बनाकर करेंगे, सब करेंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, मेहनत करके दीन को अपनी जिंदगी में लाना, दीन फैलाना नहीं, फैलाने वाले फैला चुके। अब तो वक्त वो है दीन अपनी जिंदगियों में लाना है, हकीकत के साथ, रस्मियत वाला नहीं। इसलिए बताओ, अल्लाह के रास्ते में 4 माह जाने के लिए कौन कौन तैयार है कि हम इंशाअल्लाह पहली फुर्सत पे अल्लाह के रास्ते में 4 माह निकालेंगे और अल्लाह के दीन को सीखने के लिए अल्लाह के रास्ते में निकले? बताओ इंशाअल्लाह। जो साथी नगद तैयार हो वो नगद बतावें, और जिनके पास में वक्त अभी ना हो कि हम बाद में महीना 15 दिन के बाद जाएंगे, तो भी बतावें। हम इंशाअल्लाह, हमारे यहाँ से भी जमात बनेगी, हम भी इंशाअल्लाह तैयार हैं 1 जून से इंशाअल्लाह 4 माह के लिए। बताओ भाई कौन कौन तैयार है? एक साथी खड़े होकर अपने अपने नाम को पेश करो, पक्की ठक्की नियत करके इंशाअल्लाह। मोहम्मद फरहान भाई, मोहम्मद नाहिद,
मोहम्मद साकिब भाई, मोहम्मद इरफान, अल्लाह सबको कबूल फरमाए। जवानों की जवानी को अल्लाह कबूल फरमाए। हाँ, अल्लाह कबूल फरमाए। और बताओ भाई, और बताओ, जो बूढ़े हैं वो भी बताएं। हाँ, मोहम्मद रईस भाई, जो बूढ़े हैं वो भी बताएं, इसलिए कि जवान भी चले हैं, बूढ़े भी चले हैं। अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु 94 साल की उम्र में अल्लाह के रास्ते में चले। हाँ, अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में बैठे हैं, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु से जिद कर रहे हैं, इसरार कर रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन पूरी जिंदगी में इसलिए चला हूँ ताकि अल्लाह के रास्ते की मौत नसीब हो, मैं बीमार हूँ, आप मुझे मौत की वजह से रोक रहे हैं। ये मौत की वजह, मौत तो आनी ही है, मौत तो आनी है, इससे ना कोई बच सका है ना कोई बचेगा, कोई नहीं बच सकता। अमीरुल मोमिनीन ने इजाजत दे दी, ठीक है भाई जाओ, आप चले जाओ। सफर के दौरान अपने बेटों से कह रहे हैं, बेटो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हो सकता है मैं मंजिल तक न पहुंच पाऊं, लेकिन अगर रास्ते में इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे को मेरी ऊंट से बांध देना, मुझे रास्ते में दफन न करना। ये आरजू देखो, तमन्ना देखो उनकी। जहां कुफर और इस्लाम का जंग हो, मेरे जनाजे को उस मैदान पर डाल देना, मुजाहिद की किसी सवारी का पैर भी मेरे जिस्म से टकरा गया, अल्लाह के मैं बेटा कामयाब हो जाऊं। और मैं तो चाहता हूं मेरी हाजिरी इसी हाल पर हो, अल्लाह मुझसे पूछे तू मेरे महबूब का था मेजबान, मेरे लिए क्या लाया है। अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं अल्लाह से कहूँ अल्लाह जब तक दिया तेरी राह पर चला, मरने के बाद मेरा जनाजा भी तेरी राह पर चला, तेरे जिहाद के मैदान से अभी उठकर आया। ये आरजू तमन्नाएं होती थी। इसलिए बताएं, नियत पक्की ठक्की कर लें, इरादा करें, नियत करें, नाम लिखाएं, जिंदा रहे तो चले जाएंगे, और अगर मर गए तो अल्लाह तबारक व तआला उस नियत का अज्र जरूर देंगे अल्लाह ताला। इसलिए बताओ भाई, असलम भाई क्या बात है भाई, बताना पड़ेगा भाई, लिखा दिया। अरे आज फिर लिखाओ, कल लिखाया था। हाँ, और भाई यूसुफ भाई, इस्माइल भाई, हाँ लिखाओ, नाम लिखाओ। बाबू भैया अब कहाँ रहेगा, लिखा देने। हाँ, अल्लाह कबूल फरमाए। हाँ, और जब तक के मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों बैठ जाए, जब तक अल्लाह के रास्ते में नहीं निकल रहा है। एक बंदे का नाम रह गया, मास्टर साहब तुम्हें अलग से कहा का बरी, हाँ बरिन नू ना डारे कहा। हाँ, फिर देखो भाई, हमने तो नियत कर ली, लिखा दिया, किसकी कैसी नियत थी मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों हम नहीं जानते, अल्लाह खूब जानते, अल्लाह खूब जानते। अगर नियत सच्ची होगी, यहाँ इस बच्चे ने कॉपी में लिखा है, बिल्कुल यकीनी बात है, खुदा की कसम, जिसने पक्की ठक्की नियत से लिखाया है, फरिश्ते ने उसका नाम लिख लिया, फरिश्ते ने उसका नाम लिख लिया। जब तक कि हम अल्लाह के रास्ते में नहीं निकल रहे, हम मकाम की मेहनत पर लगे, मकामी मेहनत करें, मकामी मेहनत करते रहेंगे, अल्लाह से मांगते रहेंगे, अल्लाह हमको मुल्कों के सफर कराएंगे इंशाअल्लाह। इसलिए मकामी मेहनत पर 5 आमाल बताए जाते हैं। इन आमाल से ईमान बनेगा नहीं, ये बिल्कुल पक्की बात बता रहा हूं मैं आपको। अल्लाह के रास्ते में निकलकर जो ईमान की हरारत नसीब हुई है, ये मकामी मेहनत से वो हरारत बाकी रहेगी, ये ज़हन में रखिएगा। इसलिए ईमान की मेहनत जो होगी, ईमान बनेगा मुजाहिदे से, ये पक्की बात है। जैसे सालन मिर्च मसाले गोश्त से बनता है, इसी तरह से ईमान जो बनेगा वो ईमान बनेगा मुजाहिदे की भट्टी पर, यानी कि खुरूज करने पर, खुरूज फी सबीलिल्लाह पर ईमान बनेगा। मकामी मेहनत से ईमान बाकी रहेगा, वो ईमान बाकी रहेगा। इसलिए 5 आमाल हैं, 3 आमाल रोज के हैं, 1 आमाल हफ्ते का है, 1 आमाल महीने के। ये 5 आमाल हैं।
3 अमाल रोज के मस्जिद की आबादी की मेहनत 2.5 घंटा कम से कम दर्जे की बात। सबसे पहले नंबर पर मस्जिद की तालीम होगी, उस तालीम में अपने आप को मोहताज बनाकर बैठाना। जैसे हमारे जिस्म के लिए गिजाओं के लिए जरूरत है, गिजा की जरूरत है, इसी तरह से हमारे ईमान की गिजा अल्लाह का जिक्र है। तालीम के हलकों में बैठना मोहताज बनाकर, ये मेरे खाने पीने से ज्यादा जरूरत की चीज है। और दूसरे नंबर पर है मशवरा। मशवरे में इस नियत से बैठना कि अल्लाह ताला पूरे आलम के अंदर जो खैर वजूद में लाएंगे उसमें मेरा हिस्सा हो। इस नियत से आप पूरी दुनिया के अंदर जितने मशवरे हो रहे हैं उन मशवरों में हमारा हक हो। और मस्जिद की आबादी की मेहनत, मस्जिद की आबादी की मेहनत 2.5 घंटे, उस पर अपने आप को बिल्कुल बिल्कुल मोहताज बनाकर चलाना, मोहताज बनाकर। और दूसरा इसी तरह से मस्जिद की तालीम है, हमारे घरों की तालीम है। मस्जिद की तालीम से हमारी बस्ती की बेदीनी खत्म होगी और घरों की तालीम से घरों की बेदीनी खत्म होगी। घरों की बेदीनी, हमारे घर का मस्जिद का मशवरा, इसी तरह हमारे घर का मशवरा। मस्जिद की मेहनत, मस्जिद की आबादी की मेहनत ये 2.5 घंटा। और हफ्ते में 2 गश्त करना, अपनी मस्जिद का गश्त करना कुर्बानियों के साथ में, और दूसरी मस्जिदों का, दूसरी बस्तियों का गश्त करना सहूलत के साथ। और महीने की इसी तरह मेहनत करते हुए अपनी 3 दिन की जमात खुद बनाना, खुद अल्लाह के रास्ते में निकलना। ठीक है, करेंगे इंशाअल्लाह। इस मेहनत पर चलेंगे कैसे, ये सबसे अहम बात है। इसमें मेहनत पर चलने वाला जितना ज्यादा मीठा बोल बोलेगा उतना ज्यादा चलेगा। कान तसनी से ये काम नहीं चलेगा, बिल्कुल जहनों से निकाल दे। कान तसनी से ये काम नहीं चलेगा, न ये काम चलेगा न इस पर ये बंदा काम में चल पाएगा, दोनों नहीं चलेगा। इसलिए काम के अंदर बिल्कुल मिजाज नबूवत के साथ चलना, मिजाज नबूवत के साथ। और मिजाज नबूवत कैसा है कि हर हाल में दरगुजर करते हुए चलना। जो हमको अजियत पहुंचावे उनको माफ करना है अल्लाह के वास्ते। कर लेंगे सब इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, और कहने सुनने में जो कमी कोताही हो गई उसे माफ फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन।